عجائب گھر کے طویل و عریض ہال کے پہلو میں ایک چھوٹا سا دروازہ کھلتا ہے جس کے باہر ایک سفید تختی پر وینس ڈی میلو کے الفاظ کھلتا ہے۔ وینس کے اس مجسمے کی شہرت مونا لیزا کی تصویر سے کسی طور کم نہیں۔ ساحل یونان کے قریب آیونین سمندر میں سینکڑوں خوبصورت اور چمکیلے جزیرے بکھرے پڑے ہیں۔ ان میں سے سب سے خوبصورت جزیرے کا نام میلو ہے۔ اس جزیرے پر زمانہ قدیم میں ایک ماہر مگر غریب سنتراش رہا کرتا تھا۔ نوجوان سنتراش کی مردانہ وجاہت کے قصے جزیرے میں رہنے والی تمام لڑکیوں کی زبان پر تھے، مگر وہ ان کے التفات سے بے خبر ہمیشہ پتھروں کے ڈھیروں میں کھویا رہتا۔ اس کا ہاتھ کبھی نہ رکتا، پیشے کا ہر وار پیار اور فنی مہارت کے ملاپ سے جنم لیتا۔ ایک شب حسن کی دیوی وینس اپنے آسمانی معبد سے اتر کر اس غریب فنکار کے جھونپڑے میں جلوہ افروز ہوئی۔ صدیوں سے سنتراش میرے ملکوتی حسن کو پتھر میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ وینس مبہوت کھڑے سنتراش سے گویا تھی۔ وہ سب ناکام رہے اس لیے نہیں کہ وہ فنی مہارت سے عاری تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے مجھے ہمیشہ احترام کی نظروں سے دیکھا، صرف ایک دیوی کے روپ میں۔ اس طرح ان کے بنائے ہوئے مجسمے پاکیزگی اور روحانیت کا مظہر تو بن گئے، لیکن ان میں میرے نسوانی حسن کا کوئی پہلو نمایاں نہ ہوا۔ میں حسن کی دیوی ہونے کے علاوہ ایک عورت بھی ہوں۔ میرا مجسمہ تراشنے کے لیے پاکیزگی کے پہلو بپہلو خواہش اور پیار کے انسانی جذبات کی بھی ضرورت ہے۔ پورے یونان میں میری نگاہ انتخاب تم پر پڑی ہے۔ تم ایک ایسا مجسمہ تراشو گے جس میں دیوی ہونے کے علاوہ ایک خوبصورت اور بھرپور انسانی خد و خال کی عورت کی حیثیت سے بھی ابھروں۔ مجھے جی بھر کے دیکھ لو۔ حسن کی دیوی وینس نے وہ شب غریب سنتراش کے جھونپڑے میں گزاری اور روشنی کی پہلی کرن ٹوٹتے ہی اپنے آسمانی مسکن کو پرواز کر گئی۔ اس کے جاتے ہی سنتراش نے دیشہ سنبھالا اور اپنی دیوی، اپنی محبوبہ وینس کا مجسمہ تراشنے کی خاطر سنگ مرمر کے ایک تودے میں کھو گیا۔ ماہوں سال گزرتے گئے، دیشے کی ہر کاٹ ایک نئے نقش کو جنم دیتی گئی۔ بالآخر مجسمہ مکمل ہو گیا۔ حسن کی دیوی وینس غسل کے بعد سمندر سے نکلتی ہوئی، اس کے ایک ہاتھ میں سیب تھا اور دوسرے سے وہ اپنا لبادہ تھامے ہوئے تھی جو اس کے متناسب خد و خال سے ڈھلک کر پھولوں پر اٹکا ہوا تھا۔ ایک پاکیزہ دیوی کا چہرہ اور انسانی جذبات کو ابھارنے والا ایک دلکش اور خوبصورت جسم۔ میلو کے باشندوں نے جب یہ مجسمہ دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، ہم آج سے صرف وینس کی پرستش کریں گے، وہ میلو کی واحد دیوی ہوگی۔ چنانچہ ایک عظیم الشان محبت تعمیر ہوا اور وینس کا مجسمہ ایک بلند ستون پر آویزاں کر کے اس کی پرستش شروع کر دی گئی۔ آہستہ آہستہ مجسمے کے بے پناہ حسن کا شعلہ نیلے پانیوں کے اس پار تک پر شاہ یونان تک بھی جا پہنچا۔ اکثر جابر حکمرانوں کی طرح یونان کا بادشاہ بھی یہ برداشت نہ کر سکا کہ اتنا نادر مجسمہ چند کوس دور ایک چھوٹے سے جزیروں کے بادشاہوں کی ملکیت میں رہے۔ چنانچہ اس نے اہل میلو کو پیغام بھجوایا کہ فوراً مجسمہ اس کے پاس بھیج دیا جائے۔ میلو کے باشندے بھلا اپنی محبوب دیوی کی جدائی کیوں کر برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک کوہر آلود صبح کو محبت کے اونچے مینار پر تعین پہرہ دار کی نظریں نیلے سمندر پر تیرتے ہوئے شاہ یونان کے جنگی جہازوں پر پڑی۔ ان کا رخ میلو کی جانب تھا۔ پہرہ دار نے فوراً محبت کے پرہتوں کو خبر کر دی۔ میلو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہونے کی حیثیت سے طاقتور شاہ یونان کے حملے کی تاب نہ لا سکتا تھا۔ مداخلت بے سود تھی۔ ادھر اہل میلو اور بہت ہر قیمت پر اپنی دیوی کو یونانیوں سے بچانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک انتہائی کٹھن فیصلہ کیا، مجسمے کو اس حد تک بدصورت بنا دیا جائے کہ یونانی اسے ناکارہ سمجھ کر واپس لوٹ جائیں۔ یہ کام اس غریب سنتراش کے سپرد کیا گیا۔ اس نے اپنا تیشہ تیز کیا اور دل پر پتھر رکھ کر وینس کے خوبصورت بازو کندھوں تک کاٹ دیے۔ ان کٹے ہوئے بازوؤں کو بصد احترام میلو کے ساحل کے ساتھ گہرے نیلے پانیوں میں غرق کر دیا گیا، مگر یہ ترکیب بھی کام نہ آئی۔ کٹے ہوئے بازوؤں کی وینس کی جسمانی خوبصورتی اب بھی سحر انگیز تھی اور یونانی اسے اسی شکستہ حالت میں اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ آج سے چند برس پیشتر ایک یونانی نژاد امریکی نے غوطہ زنوں کی مدد سے میلو کے گرد کا تمام ساحل اس امید میں چھان مارا کہ شاید وینس کے کٹے ہوئے بازو مل جائیں اور انہیں نامکمل مجسمے کے ساتھ جوڑ کر ایک مرتبہ پھر اس دیوی کو ہزاروں برس پہلے کا ملکوتی حسن عطا کر دیا جائے۔ اس سے ناکامی ہوئی۔ آج پاسکل اور سنان اس دروازے کے سامنے کھڑے تھے جس کے اندر میلو کی دیوی وینس کا مجسمہ دھرا تھا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئے تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہزاروں سال قبل کے اس عالیشان معبد میں پہنچ گئے ہوں جہاں قربان گاہ کے ستون پر وینس کا مجسمہ نصب تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج وینس کے خوبصورت بازو میلو جزیرے کے گرد پھیلے ہوئے پانیوں کی تہ میں کائی آلود ہو چکے تھے۔ سنان نے دیکھا کہ مجسمے کے سنگ مرمر کا دودھیا رنگ اب دھندلا چکا ہے۔ خوبصورت جسم کے اکثر حصوں سے کرچیں اتر چکی ہیں اور وہاں گڑھے بن گئے ہیں۔ اس شکستہ حالت میں بھی وینس ایک ذی روح دیوی کی مانند مسحور کن حد تک خوبصورت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی اپنا ڈھلکا ہوا لبادہ سنبھالتی ستون سے نیچے اتر آئے گی۔
اور बड़ी हैरत से पूछेगी, मैं मेलों के चमकते जजीरे से निकलकर इस सर्द देश में कैसे आ गई? मेरे बाजू कहाँ हैं? मैं अपाहिज कैसे हो गई? मुझे तो इस मुजस्मे में कोई खास बात नजर नहीं आती। पास्कल ने मुजस्मे के गिर्द घूमकर उसे तनकीदी नजरों से देखते हुए फैसला दे दिया। उसे दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत का खिताब दिया गया है, यहाँ तक कि फ्रांस में इसके खदोखाल की पैमाइश को निस्वानी जिस्म के तनासब का आखिरी म्यार करार देकर एक मुकाबला हुस्न भी मुनक्किद किया जाता है। फिर उसने एक निगाह वीनस के सडोल कुल्हों और सीने पर डाली और नाक चढ़ा कर बोली, मेरे ख्याल में तो वीनस बेहद मोटी है। पास्कल ने आखिरी फिक्रा रश्क-आमेज़ लहजे में अपनी मासूमियत से अदा किया कि सनान मुस्कुराए बगैर ना रह सका और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, दरअसल तुम वीनस के खूबसूरत जिस्म से जलती हो। पास्कल तेजी से पीछे मुड़ी, उसकी नीली आंखें जल रही थी। वो थोड़ी देर खामोश रही और फिर रुंधी हुई आवाज में कहने लगी, मैं कैसे जल सकती हूँ? सनान बदस्तूर मुस्कुराता रहा, वो भी तो मेरी तरह अपाहिज है। पास्कल ने एकदम चीख कर कहा। सनान सकते में आ गया। उसे गुमान भी ना था कि पास्कल इस खूबसूरत मुजस्मे में भी अपनी दिल आजादी का जवाब तलाश कर लेगी। हाँ, वो भी तुम्हारी तरह अपाहिज है, लेकिन उसने अपने अपाहिजपन को खुद अजियती का जरिया नहीं बना लिया। सनान को एकदम गुस्सा आ गया। इतने रोज से वो अपनी जिस्मानी खामी को नजरअंदाज करने की कोशिश करती रही थी और आज जबकि उसने पेरिस से चले जाना था, वो एक मरतबा फिर दर्द की उन्हीं राहों पर चल निकली थी। पास्कल सर झुकाए चमकीले फर्श को घूमती रही और फिर उसके गालों पर आंसुओं की एक लड़ी बह निकली। सनान को अपनी हमाकत का एहसास हुआ। आज सुबह से ही उसके लहजे में तेजी थी। वो खुद अपनी नजरों में मुजरम था और इसी एहसास जुर्म के तहत पास्कल के साथ उसका रवैया इतना दुरुस्त हो गया था। उसने आगे बढ़कर पास्कल को कंधों से थाम लिया और निहायत नरमी से कहने लगा, पास्कल, इस देवी को, इस वीनस को अब भी अपने हुस्न पर इतना नाज है कि लोग इसके कटे हुए बाजुओं को भूल गए हैं। तुम्हें मालूम है कि तुम बेहद हसीन हो। पास्कल, तुम भी अपने कटे हुए बाजुओं को भूल क्यों नहीं जाती? मैं नहीं भूल सकती, उसने आहिस्ता से कहा। सनान ने उसकी थोड़ी तले उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर किया। मेरे लिए पास्कल। वो लगातार सिसकियां भर रही थी। उसकी नीली आंखों से आंसुओं के फवारे छूट रहे थे और तमाम चेहरा तरबतर था। मैं नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती, वो बार बार कह रही थी। बच्चों की तरह सर हिला रही थी। कमरे में जमा चंद लोग उनकी तरफ देखने लगे। उनकी नजरों में रहम और हमदर्दी की परछाइयां थी। सनान ने जेब से रुमाल निकालकर उसके आंसू पूंछे और सहारा देकर अजायब घर से बाहर ले आया। बाहर अभी तक धूप चमक रही थी, हर तरफ जिंदगी थी, मगर इन तमाम चीजों से बेखबर पास्कल अपने आप में खोई हुई थी। आज चलते वक्त उसके पांव घिसट रहे थे। यूं लगता था जैसे वो बेजान हो। सनान ने अपने गीले रुमाल से तोलियस बाग में लगे एक बेंच की सतह साफ की और पास्कल को वहां बिठा दिया। वो शाम तक वहीं बैठे रहे। पास्कल खामोशी से उसके कंधे पर सर रखे रोती रही और सिसकियां भरती रही। सनान चुपचाप उसके आंसुओं से तर मासूम चेहरे और भीगी हुई नीली आंखों को तकता रहा और सोचता रहा, आज फिर पास्कल को अपने अपाहिजपन का एहसास इतनी शिद्दत से क्यों हो रहा है? क्या वो इसके भेद को जान गई है? वो क्यों अपने कटे हुए बाजुओं को नहीं भूल जाती? या फिर उसे खुसर खुसर करती हुई बूढ़ी औरतें, लड़कियां और मर्द भुलाने नहीं देते? शाम होते ही बाग के मुख्तलिफ हिस्सों में नस्बशुदा करीम खंभों की रोशनियां जल उठी। सुरमई अंधेरा दूधिया रोशनी में तब्दील हो गया और चहल पहल शुरू हो गई। बाहों में बाहें डाले नौजवान जोड़े जो पेरिस की पुरफसूं शब का हुस्न समेटने इधर आ निकले थे। गैर मुल्की सयाह जो अपने मुख्तलिफ कयाम के दौरान में इसी हुस्न का हिस्सा बांटने इधर चले आए थे। उनके बेंच के गिर्द बेशुमार छोटे छोटे बच्चे खेल कूद में मगन थे। एक गुड़िया सी लड़की ने अपना सुर्ख गेंद उछाला जो लड़खता हुआ पास्कल के कदमों में आ गया। वो गेंद उठाने के लिए झुकी तो गुड़िया भागती हुई आई, उनके पास चली आई। पास्कल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ डाले और उसे गोद में उठा लिया। फ्रांसवा, मैडमोजेल का लिबास खराब ना करो, तुम्हारे जूतों पर कीचड़ लगा है। एक बूढ़ी औरत जो गुड़िया के पीछे चली आई थी उससे मुखातिब होकर बोली और फिर पास्कल से माजरत करके उसे गोद से उठाकर अपने साथ ले गई। कितनी खूबसूरत बच्ची थी सनान। पास्कल ने पिछले कई घंटों बाद पहली मर्तबा लब खोले। हाँ, बेहद प्यारी थी, सनान ने नरमी से कहा। तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? पास्कल ने उसके कंधे पर से सर उठाकर पूछा। बच्चे? वो सोच में पड़ गया। हाँ, शायद अच्छे ही लगते हैं, शायद। हाँ, अगर वो 5-6 वर्ष की उम्र से कम के ना हो तो जानबूझकर बच्चे देखकर जाने क्यों मैं अजीब सा महसूस करता हूँ। मसलन मेरे दिल में कभी भी ये ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि मैं किसी बच्चे को गोद में उठा लूं। सनान जानबूझकर इस गुफ्तगू को तवालु देना चाहता था ताकि उसका ध्यान बटा रहे। मर्द बेहद खुदगर्ज होते हैं, पास्कल ने दुख से कहा। मुझे मालूम है जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो तुम्हारे एहसासात आज से मुख्तलिफ होंगे। अपने बारे में क्या ख्याल है? हर लड़की की तरह मुझे भी बच्चे बेहद अच्छे लगते हैं। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मेरे अपने बच्चे, मैं भी माँ बनूं। पास्कल की आंखों से फिर आंसू बहने लगे और वो खामोश हो गई। प्लीज पास्कल, आखिर इसमें रोने की कौन सी बात है? वीनस के मुजस्मे ने मुझे अपने अपाहिजपन का एहसास दिलाया और इस नन्ही मुन्नी बच्ची ने उसी अपाहिजपन की मजबूरियों का। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी शादी ना हो सकेगी। मैं माँ ना बन सकूंगी।
तुम शायद इसे ना समझ सको, मगर एक औरत के लिए इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। तुम ख्वामख्वाह दिल छोटा करती हो। सनान ने उसे दिलासा दिया। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन वो अजनबी जरूर आएगा जिसका इंतजार हर लड़की को होता है। और फिर मेरा इंतजार तो कब का खत्म हो चुका, अब मुझ में मजीद इंतजार की ताब नहीं। सनान खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद बुलेवार्ड सान जमीन की जानब से नौजवान लड़कों और लड़कियों का एक ग्रोह शोर मचाता हुआ बरामद हुआ और वो सब उनके करीब ही घास पर बैठ गए। उनमें अक्सर शराब के नशे में धुत थे और गंदे फ्रांसीसी गाने लाप रहे थे। पास्कल बेंच से उठ खड़ी हुई। मैं किसी पुरसकून जगह बैठना पसंद करूंगी। फूलों का बाजार इस वक्त बंद होगा, चलो वहां चलते हैं। उसका चेहरा बिल्कुल जर्द हो रहा था। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। नहीं, पास्कल ने तेजी से कहा, मेरा मतलब है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुस्कुराने की कोशिश की। जैसे तुम्हारी मर्जी, सनान ने बेदिली से कहा। तुम शायद मुझसे नाराज हो गए हो। उसने सनान का हाथ अपने हाथों में ले लिया। नहीं तो मुझे अफसोस है कि वहां अजायब घर में इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें मेरी बेवकूफी की वजह से शर्मिंदगी उठाना पड़ी। मैं बेख्तियार सी हो गई थी सनान। आज सुबह जब मैंने तुम्हारे दिए हुए तोहफे का कागज खोला तो ठटक गई। वीनस का मुजस्मा और उसके कटे हुए बाजू। मुझे ऐसा लगा जैसे तुमने जानबूझकर मुझे मेरे पाहिज होने का एहसास दिलाया हो। मुझे मालूम है कि मेरी ये सोच दुरुस्त ना थी। और अब अजायब घर में मैंने जब उसी मुजस्मे का असल रूप देखा तो तुम्हारे एक बेजरर से फिक्रे से मेरे अंदर पकने वाला लावा उबल पड़ा। मुझे माफ कर दो सनान, प्लीज। खैर छोड़ो इस किस्से को। पास्कल, इसमें तुम्हारा अपना ही भला है। आखिर कब तक इस महरूमी का मातम करोगी? इसी एक महरूमी ने तो सैकड़ों महरूमियों को जन्म दिया है। मैं किस किस का गला घोंटूं? ये महरूमियां तुम्हारे अपने तखय्युल की पैदावार है, सनान ने नरमी से कहा। जिस रोज तुमने अपने आप को लोगों की नजरों से नहीं बल्कि अपने अंदर की आंख से देखने की सलाहियत पैदा कर ली, ये महरूमियां अपनी मौत आप मर जाएंगी। तुम हसीन हो, एक सोचने वाला जहन रखती हो, और फिर यहाँ मेरी मौजूदगी क्या तुम्हारे इस संदेशे को बातिल नहीं साबित करती कि लोग इस खामी की बिना पर तुम्हें रफाकत के अहल नहीं समझते। तुम पास्कल बेख्तर मुस्कुरा दी और उसकी पलकों तले साफ शफाफ नीली आंखें झांकने लगी। तुम उन सब लोगों से मुख्तलिफ हो सनान। इस दुनिया में बेशुमार लोग मेरे जैसे ही हैं। तुम अपने इस खुद अजियती के खोल से बाहर तो झांक कर देखो। फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं। आओ फूलों के बाजार में जाकर बैठते हैं। उसने सनान का हाथ पकड़कर अपनी कमर के गिर्द डाल लिया। वो तोलियस के वसी बागात में से चलते हुए फूलों के बाजार में आ गए। सनान को याद आया कि अभी कल सुबह हुई तो उन्होंने वहां से मछलियां पकड़ने का सामान खरीदा था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे इस बात को बरसों बीत चुके हों। पास्कल का सफेद लिबास, सेम के पानी में तैरती हुई साकन कुंडियां, जाने कब की बात थी। आज शाम फूलों के अंबारों से भरे हुए लकड़ी के खोखे बंद पड़े थे और पूरा बाजार वीरान था। इन छोटे छोटे वीरान खोखों को देखकर गुमान भी ना होता था कि दिन के वक्त यहाँ हर सू खुशबू होती है और रंग बिखरते हैं। बाजार के दोनों तरफ दरख्तों की कतारें थी जिनके सूखे हुए पत्ते इधर उधर बिखरे पड़े थे। एक खोखे के बाहर चंद शिकस्ता कुर्सियां रखी थी। सनान और पास्कल वहीं बैठ गए। हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। पेरिस के हंगामों में सुकून का एक उजाड़ जजीरा। सनान ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली। 8 बजने को थे और उसे हर सूरत 10 बजे तक स्टेशन पर पहुंच जाना चाहिए। वो जैनी की पार्टी के बारे में अक्सर भूल चुका था। उसने फैसला किया कि अब उसे हर सूरत पास्कल को अपनी रवानगी के बारे में बता देना चाहिए, वरना वो पूरे वक्त स्टेशन पर ना पहुंच पाएगा। और अगर आज पेरिस से ना जा सका तो हो सकता है कल भी ना जा सके, आइंदा कभी भी ना जा सके। पास्कल, सनान ने उसकी ठोड़ी तले उंगली रखकर उसका खूबसूरत चेहरा अपनी जानिब देखा। नीली आंखें बिल्कुल खुश्क थी। मैं आज सुबह से तुम्हें एक निहायत अहम बात बताना चाहता था, मगर इस शर्त पर कि तुम्हें शर्तें आयद करने की जरूरत नहीं। सनान, पास्कल ने बिल्कुल स्मार्ट लहजे में कहा, मुझे मालूम है कि तुम पेरिस छोड़कर जा रहे हो। और उसका हाथ हटाकर सर झुकाकर बैठ गई। लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम हो गया? सनान ने हैरतज़दा होकर पूछा। मैं एक नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, इसलिए दूसरे लोगों का रवैया भी मेरे साथ नॉर्मल नहीं होता। वो कभी भी मेरे साथ खुलकर बात नहीं करते। इन्हीं लोगों के रवैये ने मेरे अंदर एक ऐसी हिस्स को जन्म दिया है कि जब भी मुझे कोई छोड़ना चाहता है तो मुझे खुद ब खुद इल्म हो जाता है। आज सुबह से ही तुम्हारा रवैया मेरे साथ नॉर्मल नहीं था। तुम जरूरत से ज्यादा खामोश थे। जब भी बात करते उसमें दुरुस्ती होती और फिर बार बार मुझे अपनी जिंदगी पर तैनात करने की तलकीन का आखिर क्या जवाब हो सकता था? यही ना कि तुम मेरे पास नहीं रहोगे और मुझे ये जिंदगी तुम्हारे बगैर ही गुजारना होगी। मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मैं किसी सूरत भी पेरिस में नहीं ठहर सकता। हाँ, तुमने तो मुझे बता दिया था, लेकिन क्या मैंने तुम्हारे इस फैसले को कबूल कर लिया था? मैंने तुम्हें कहा था ना कि सनान, मुझे एक खुशी मिलती है तो मैं उसके दूसरे सिरे पर जाकर एक और खुशी तलाश करती हूँ, और फिर इस तरह मेरा जी चाहता है कि खुशियों और मुसरतों का ये सिलसिला कभी खत्म ना हो। इंसान अपाहिज हो या नॉर्मल, उसकी फितरत तो नहीं बदलती।
मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुमने कभी भी मुझसे कोई वादा नहीं किया। मैं इन चंद दिनों में जहाँ इतनी खुश थी, वहां तुमसे जुदाई का ख्याल भी मेरे जहन में कांटे की तरह बेबस था। मैंने इस कांटे को निकाल देने की बहुत कोशिश की, मैं कामयाब नहीं हो सकी। मैं अपने आप को तुमसे जुदाई के लिए तैयार नहीं कर सकी। कितने बजे जा रहे हो? गरनाता जाने वाली गाड़ी रात 10 बजे पेरिस के स्टेशन से चलती है, सनान ने सर झुकाकर कहा। पास्कल, सोचो तो सही, मुझे आखिर एक रोज तो यहाँ से जाना ही था। वो एहसास नदामत तले दबा जा रहा था। तुम भी ठीक कहते हो, और इधर मैं भी ये ना सोच सकी कि तुम एक स्याह हो, और स्याह किसी के बंधनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर अपाहिज बंदरों को। मैंने सारी उम्र एक मफरूर मुजरम की मान्यत लोगों की नजरों से बचने में गुजारी है। मैं किसी पर भरोसा ना कर सकी थी, मुमकिन ही ना था। और फिर मैंने अपनी एक अलहदा दुनिया बसा ली, जिसमें सिर्फ ख्वाबों के लोग बसते थे। तुमने ख्वाब की इस दुनिया से मुझे निकाल कर बाहर ला खड़ा किया। मेरी आंखें चंधिया गई, मुझे कभी इतनी रोशनी ना मिली थी। और जब जब मेरी आंखें इस चकाचौंध रोशनी की आदी हो चली थी, तुम फिर मुझे उन्हीं अथाह गहराइयों में लौट जाने का कह रहे हो। मैं आज एक मरतबा फिर बेबस और लंगड़ी महसूस कर रही हूँ। मुझे पहले की तरह लोगों की नजरों से छुपकर जिंदगी गुजारना होगी, एक मफरूर मुजरिम की तरह। आजकल की आंखें बिल्कुल खुश्क थीं, और वो बड़े इत्मीनान से बातें कर रही थी। तुम अब कभी इन अथाह गहराइयों में नहीं डूबोगी, तुम कभी भी उस ख्वाब की दुनिया में वापस नहीं जाओगी। सनान ने उसका हाथ थाम कर कहा, तुमने देख लिया है कि तुम्हें देखकर किसी बूढ़ी औरत ने खुसर खुसर नहीं की, किसी नौजवान लड़की ने नाक मुंह नहीं चढ़ाई, और किसी मर्द ने मेरी अकल पर मातम नहीं किया। तुम्हारा खौफ बेबुनियाद साबित हुआ है। तुम नहीं देख रहे थे सनान, मगर मेरे जिस्म को उन लोगों की निगाहों की तेज सुइयां छेद रही थी, और ये सुइयां मेरा मुकद्दर बन चुकी हैं। उन्हें मेरे जिस्म से नोच फेंकने के लिए अब कोई शहजादा नहीं आएगा। मैं एक मरतबा फिर रहम और हमदर्दी के जज्बात की भिखारी बन जाऊंगी। पास्कल, सनान की आवाज शिद्दत जज्बात से रुंध गई। प्लीज ऐसी बातें ना करो। मैं चंद रोज और भी ठहर सकता था, लेकिन अगर मैं आज ना गया तो कभी ना जा सकूंगा। प्लीज मुझे मत रोको। और फिर चंद हफ्तों में सर्दियां शुरू हो जाएंगी। मुझे हर हालत में इससे पहले तुर्की अबूर करना है, वरना बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। सनान ने नजरें झुका ली, उसका दिल इन तमाम बातों की नफी कर रहा था। सर्दियां शुरू हो जाएंगी तो क्या हुआ, बिलाखिर खत्म भी तो होंगी। पास्कल ने उसके दोनों हाथ सख्ती से खींच लिए। तो मौसम बहार में वापस वतन लौट जाना सनान। पास्कल, हाँ सनान, तुम मुझे सैकड़ों मरतबा बता चुके हो कि तुम पेरिस में नहीं ठहर सकते, तुम्हें उनदलस जाना है। सर्दियों से पेशतर तुर्की अबूर करना है, अपने खानदान के पास वतन लौटना है। मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती सनान। तुम सनान ने अपनी थैली पास्कल के खुनक लबों पर रख दी। खामोश हो जाओ पास्कल, मुझे अपनी ही नजरों में इतना ना गिराओ। पास्कल ने सनान का हाथ लबों से हटा दिया। तुम मेरे पास रह जाओ सनान। पास्कल, मैं दूसरों से रहम और हमदर्दी की भीख मांगने की बजाय तुम्हारे आगे कशकोल फैलाई देती हूँ। मुझे भीख नहीं, सनान ने एकदम चीख कर कहा। नहीं, सनान ने एकदम चीख कर कहा। सनान। पास्कल ने उसका चेहरा अपने हाथ में ले लिया और आंखें बंद कर ली। मत जाओ, मैंने तो दुनिया के तमाम नक्शे दिला दिए हैं। उसकी बंद आंखों से आंसू रिसने लगे। चांदी के झुमके अंधेरे में मटियाले लग रहे थे। सनान का दिमाग बहकने लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो पागल हो जाएगा। उसके अंदर लावा उबल रहा था। मत जाओ सनान, मत जाओ। ये उसके दिल की आवाज थी जो जहन पर मुसलसल जरबे लगा रही थी। नक्शे भी जल चुके हैं, रास्ते भी महदूद हो चुके हैं। वो क्या करे, क्या ना करे। उसका दिमाग मौफ हो चुका था। वो पास्कल की तरफ खामोशी से देखता रहा, जिसकी लंबी पलकें आंसुओं से निचड़ रही थी। थोड़ी देर बाद पास्कल ने आंखें खोल दी। वो सनान को टिकटिकी बांधे तकती रही, जैसे उसके दिल की आवाज की मुंतजिर हो। और फिर उसके हाथ लरसने लगे और उसने यकदम सनान का चेहरा छोड़ दिया। सनान ने देखा कि पास्कल का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, जैसे वो मोम की बनी हो। लेकिन उसकी इज़्तिरारी कैफियत खत्म हो चुकी थी। वो बेहद पुरसकून लग रही थी, जैसे उसे करार आ गया हो। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। उसके लबों पर एक फीकी मुस्कुराहट लरसने लगी। मुझे माफ कर दो सनान, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो सब दीवानगी की बातें थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सनान भी वहां से उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़कर पास्कल का हाथ थामने की कोशिश की। वो पीछे हट गई। नहीं सनान, मुझे मत छुओ, वरना मैं फिर दीवानगी की बातें करना शुरू कर दूंगी। मैं फिर से बेबस हो जाऊंगी। सनान एक मुजरम की माने खड़ा रहा। तुम कह रहे थे कि तुम्हें सर्दियां शुरू होने से पहले ही तुर्की अबूर करना है, वरना वहां बर्फबारी शुरू हो जाएगी। तुम्हें मालूम है कि मौसम सरमा की आमद तुम्हारी निस्बत मेरे लिए ज्यादा असियतनाक साबित होगी। तब तो मैं अपने कमरे में कैद होकर रह जाती हूँ। मेरे तमाम बदन में शिद्दत का दर्द उठने लगता है। जब खजां का अखीर होगा तो मैं अपने कमरे की खिड़की में बैठी फुटपाथ पर शाहबलूत के तांबे की तरह दहकते सुर्ख पत्तों को गिरते देखकर तुम्हें याद करूंगी, और फिर मेरा दर्द कम हो जाएगा। उसने आहिस्ते से सनान का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे अपने खुश्क लबों से लगा लिया।
خدا کرے تم اپنے وطن خیریت سے پہنچ جاؤ، خدا حافظ، میں تمہیں ٹیکسی پر گھر چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں نہیں، اسے بچوں کی طرح انکار میں سر ہلایا۔ میں ابھی دریا سین کے کنارے جانا چاہتی ہوں تاکہ مجھے ایک ایک مرتبہ پھر وہاں اکیلی گھومنے کی عادت ہو جائے۔ یہ کہہ کر اس نے سنان سے منہ موڑ لیا اور پھر بے حد آہستہ آہستہ پھولوں کے بازار کے درمیان چلنے لگی۔ ہر طرف خاموشی اور ویرانی تھی، سرخ پتوں کی کھڑکھڑاہٹ، ان کے کچلے جانے کی سسکیاں، سوکھے ہوئے خزاں رسیدہ پتے، وہ بری طرح لنگڑا رہی تھی۔ وہ ایک قدیم روشنی کے کھمبے کے پاس سے گزری، اس کے چاندی کے جھمکے چمکے اور اسی لمحہ پھر دھندلا گئے۔ پاسکل اس سے دور ہوتی گئی اور وہ وہیں بت بنا کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کھوکھوں کی خالی کتاروں کے درمیان پاسکل کا گھسٹتا ہوا خوبصورت پاؤں سوکھے پتوں کو سمیٹتا چلا جا رہا تھا۔ بازار کے سرے پر پہنچ کر وہ ایک لمحہ کے لیے رکی اور پھر پیچھے دیکھے بغیر دائیں ہاتھ پر دریائے سین کو جاتی ہوئی سڑک پر مڑ گئی۔ خاموشی مکمل ہو گئی، اجڑے ہوئے خزاں رسیدہ پتے مردہ پڑے تھے، پھولوں کا بازار دھندلا رہا تھا۔ سنان کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی تہ تیرنے لگی۔ اس نے جیب سے رومال نکالا، اپنے آنسو پونچھے اور بھاری قدموں سے چلتا ہوا اپنے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور سارا وجود تپ رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا گیا ہو۔ ایک جگہ رہنے سے ہی، ساکت ہونے سے ہی پھول جینی کی آواز گونجی، میں نے آج نقشے کو جلا دیا ہے اپنے دشمن کو۔ اس کے ذہن میں آوازیں گڑبڑ ہوتی چلی گئی۔ پاسکل دریا کے کنارے اکیلی ہوگی، وہ مر جائے گی۔ نہیں، مجھے وطن واپس جانا ہے۔ ترکی میں برف باری شروع ہو جائے گی، میرے ماں باپ بہن بھائی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں سیاہ ہوں، ایک جگہ رہنے سے میرے پاؤں زمین میں تنس جائیں گے۔ ایک جگہ رہنے سے ہی پھول کھلتے ہیں، پھول، زرد گلاب۔ جانے وہ کب اور کیسے اپنے مقام تک پہنچا۔ اس نے رک کر گھڑی کے چمکتے ہوئے ڈائل پر نظر ڈالی۔ شاید 9 بج رہے تھے، 10 بجے گاڑی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کر کے کمرے میں آ گیا اور اپنے بکھرے ہوئے سامان کو تھیلے میں ٹھونسنے لگا۔ اسی وقت جینی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ سنان، تم؟ کیا ہے؟ سنان نے ایک دم پلٹ کر اپنی جلتی ہوئی آنکھیں جینی پر جما دی۔ سنان، تم نے وعدہ کیا تھا کہ… جینی کے لہجے میں خوف تھا۔ میں نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا، میں کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا تھا۔ پھر مجھے ہر کوئی مجرم کیوں سمجھتا ہے؟ کیوں؟ جینی ٹھٹک گئی، اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ میری سہیلیاں تم سے ملنا چاہتی ہیں، میں 8 بجے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ پارٹی؟ جینی، یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن میری پارٹی اس کی زبان میں لکنت تھی۔ چلی جاؤ، سنان دھاڑا۔ جینی چپکے سے باہر نکل گئی۔ سنان دوبارہ اپنا سامان پیک کرنے میں مگن تھا۔ پاسپورٹ، شیونگ کا سامان، تولیہ، سلیپر۔ رات کے سفر کے پیش نظر اس نے کوٹ کے نیچے ایک سویٹر پہن لیا۔ صفی کتابچے، اسکارف ٹائی، سفید ٹائی پر ایک ہلکا سا سرخ نشان تھا، پاسکل کی لپسٹک کا نشان۔ سنان نے ٹائی طے کیے بغیر تھیلے میں پھینک دی۔ تھیلا بند کرنے سے قبل اس نے کمرے میں ایک طائرانہ نظر ڈالی، کہیں کوئی چیز رہ نہ گئی ہو۔ پلنگ کے ساتھ پٹائی پر ایک کتاب رکھی تھی، پاسکل کی دی ہوئی۔ سنان نے نہ چاہتے ہوئے بھی ورق الٹ کر دیکھا، شہزادے کے نام۔ بدصورت لوگوں کو بھی محبت جیسے جذبے کی چاہت ہوتی ہے، مگر ان کا دل اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ صرف اس وجہ سے محبت سے محروم کر دیے جائیں۔ پیرس کی، پاسکل کی طرف سے، پیار کے ساتھ۔ سنان نے کتاب کو ایک دم اپنے تھیلے میں یوں ڈال لیا جیسے کتاب سفید کاغذ کی بجائے دہکتے ہوئے تانبے کی ہو، خزاں رسیدہ شاہ بلوط کے پتوں کی رنگ کی۔ اس نے سامان کندھے پر رکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ جینی اپنے دروازے کی اوٹ پہ کھڑی تھی، اسے دیکھتے ہی باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، چند لڑکیاں صوفے پر بیٹھی تھیں، ان سب کی نظریں سنان پر لگی تھیں۔ سنان، آج تو تمہارے اپنے ڈبے کی کافی بھی ختم ہو گئی ہے، ورنہ تمہیں جانے سے پہلے ایک پیالی ضرور بنا کر دیتی۔ جینی نے آگے بڑھ کر کہا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ میری ایک سہیلی کے پاس کار ہے، اگر تم چاہو تو۔ نہیں جینی، شکریہ، سنان نے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا اور آگے چلنے لگا۔ تمہاری صحت کا جام۔ جینی نے ہاتھ میں تھاما ہوا گلاس حلق میں ڈھیل دیا۔ سیڑھیاں دیکھ کر اترنا سنان، پچھلی شب کی کرچیں ابھی تک بکھری پڑی ہیں، کہیں کوئی ٹوٹا ہوا شیشہ تمہارے پاؤں میں نہ چبھ جائے۔ سفر بخیر۔ سنان قدرے ٹھٹکا اور پھر تیزی سے نیچے اتر گیا۔ مکان سے باہر نکلتے ہی اسے ٹیکسی مل گئی اور وہ اس میں سوار ہو کر پیرس کے اسٹیشن پر آ گیا، جہاں پلیٹ فارم پر ہسپانیہ جانے والی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ اس نے گرناتا تک کا ٹکٹ خریدا اور ڈبے میں سامان رکھ کر گاڑی کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں بے اختیار پلیٹ فارم کے اخیر میں داخلے کے پھاٹک پر لگ گئی۔ پلیٹ فارم پر خاصی گہما گہمی تھی، لوگ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو الوداع کہنے آئے تھے۔ برق کی روشنیوں سے پورا اسٹیشن منور تھا اور یہ گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ رات کے 10 بجنے کو ہیں۔ سرزمین اندلس کی طرف سفر کرتے ہوئے اس کا دل خوشی سے بھرپور ہونا چاہیے تھا، مگر آج اس ڈور میں جھول آ چکا تھا جس نے سنان کو اب تک اپنے سے غرناطہ کے ایوانوں اور کرتبہ کے محرابوں سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف پاسکل کا بھولا بھالا اداس چہرہ ابھرتا اور ڈوب جاتا، جیسے وہ خیالوں میں بھی لنگڑا رہی ہو۔
इंग्लिस्तान से फ्रांस आते हुए स्टीमर के अर्शे पर ठहरता हुआ सुरकोट। बुए डी बॉलोन में सीन के किनारे एक चमकीला दिन और एक पुरफसू शाम, और फिर कटे हुए बाजुओं की वीनस का मुजस्मा जिसने उसे रुला दिया था। वो इन्हीं ख्यालों में मगन था कि इंजन ने विसल दे दी। प्लेटफॉर्म पर खड़े मुसाफिर जल्दी से गाड़ी में सवार होने लगे। स्नान की नजरें अभी तक दाखिले के फाटक पर लगी थी। वो ये फैसला ना कर पाया था कि वो वहां दरवाजे के साथ लगकर इस फाटक पर क्यों नजरें जमाए हुए है। इंजन के देवजात पहिए आहिस्ता से सिसके और फिर गाड़ी के डब्बे आपस में भिड़कर हरकत में आ गए। मुसाफिरों को अलविदा कहने वालों का रुख अब बाहर जाने वाले फाटक की तरफ था। प्लेटफॉर्म खाली हो रहा था। वहां नस्ब रोशनी के खंभे भी हरकत में थे। स्नान भी अपनी नशिस्त पर वापस जाने के लिए पीछे हटने को था कि प्लेटफॉर्म के आखिर में हजूम के दरमियान उसे पास्कल का चेहरा दिखाई दिया। सुर्ख कोट और चांदी के चुमकों के दरमियान एक चेहरा सर्द। वो हजूम को चीरती, दोनों हाथों से लोगों को धकेलती इस अनबुहे कसीर के दरमियान रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। स्नान दरवाजे से उतरकर पायदान पर खड़ा हो गया। पास्कल, स्नान ने पूरी कुव्वत से पुकारा। वो लम्हा के लिए ठटकी। उसकी नजरें गाड़ी की खिड़की और दरवाजे में से झांकते हुए चेहरों पर फिसलती स्नान पर आकर रुकी। उसने एक भरपूर कोशिश से अपने आप को रेले से आजाद किया और स्नान की जानिब दौड़ने की कोशिश करने लगी। वो एक हाथ से अपनी रान को दबाए तेज भागने की कोशिश कर रही थी और उसका दूसरा हाथ सख्ती से लबों पर जमा हुआ था। वो बुरी तरह लंगड़ा रही थी। उसके पांव उसके जिस्म के पीछे घिसटते चले आ रहे थे। गाड़ी की रफ्तार अगरचा अभी बेहद कम थी, लेकिन फासला बतदरीज बढ़ रहा था। स्नान का जी चाहा कि वो अपना सामान वगैरह डब्बे में ही छोड़कर प्लेटफॉर्म पर छलांग लगा दे ताकि पास्कल भागने की अजियत से बच जाए। पास्कल, भागना बंद करो, उसने मुंह पर हाथ रखकर जोर से कहा, लेकिन वो शायद सुन ही नहीं रही थी। उसका सुर्ख कोट गाड़ी के तेजी से घूमते हुए पहियों में से खारिज होती हुई हवा के जोर से फिजा में फड़फड़ा रहा था। स्नान ने हैंडल को मजबूती से पकड़ा और खतरनाक हद तक आगे झुककर अपना हाथ पास्कल की जानिब बढ़ा दिया। उसके लब हिल रहे थे और वो स्नान से कुछ कह रही थी, मगर पहियों की मुहीब गड़गड़ाहट में उसकी आवाज दब गई। गाड़ी की रफ्तार अब तेज हो चली थी। उसका खूबसूरत गोल चेहरा आंसुओं से तर था और नीली आंखें बिल्कुल खुली थी। उनके दरमियान फासला बढ़ने लगा। पास्कल के चेहरे पर अजियत के आसार थे। वो बुरी तरह लंगड़ा रही थी। उसने उंगलियां लबों से छूकर हाथ स्नान की तरफ बढ़ा दिया। पास्कल, खुदा के लिए दौड़ना बंद करो, तुम मर जाओगी पास्कल, स्नान ने एक मरतबा फिर उससे पुकारा। उधर उसी लम्हे वो धड़ाम से प्लेटफॉर्म पर गिर गई। उसने ना तो वहां से उठने की कोशिश की और ना ही स्नान की जानिब देखा। उसका सुर्ख कोट उसके गिर्द हाला बनाए हुए था, जिसके दरमियान पास्कल एक खूबसूरत राजहंस की मानंद बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। गाड़ी प्लेटफॉर्म से बाहर आई तो पास्कल गठरी बनी एक नई नवेली दुल्हन की तरह दिखाई दे रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका चेहरा धुंधलाकर सुर्ख कोट में मदगम हो गया और फिर सुर्ख कोट रात की तारीकी में जज़ब होकर एक नुक्ते की सूरत इख्तियार कर गया, जो बिलाखिर स्नान की नजरों से गायब हो गया। लाहौर, 1 मार्च 1972।